I welcome to you all in this particular session, how to make notes for Indian polity. Now, when we talk about Indian polity, जब हम Indian polity की बात करते हैं, it is extremely important when it comes to your prelims. जब prelims की बात आती है, ये काफी important topic है because in prelims 15% questions are coming from Indian polity. Prelims में 15% questions इंडियन पॉलिटी में से ही आते हैं. 15% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटी इन प्रीलिम्स. सो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल. आपके प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ, पॉलिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. पॉलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके प्रीलिम्स में. राइट, क्लियर? ओके. Indian polity, a very crucial topic, very crucial subject. Before that, here's a small announcement. If you wish to subscribe to Unacademy Plus, use code Sharma20 to get 10% discount. When we talk about polity, how to start this? Okay. First thing when you jump into UPSC is go through previous year question paper. Okay. पहली चीज आपको करनी है वो है previous year question paper. When you go through last 5 years previous year question paper, right? जब आप last 5 years के previous year question paper पढ़ते हो, why to study the previous year question paper first? In order to understand the mind of UPSC. UPSC के mindset को समझना अगर है आपको, तो previous year question paper is the key, right? If you go through last 5 years previous year question paper, you will see the questions coming from polity have gradually increased. 2016 में 11 क्वेश्चन थे. उसके बाद धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया जा रहा है. Slowly it is increasing. Okay. And when I'm saying it is increasing, that means weightage of polity is increasing. यानी कि UPSC is focusing more on polity aspect and it wants the administrators to be more polity oriented. यानी कि आपका आगे जाकर काम ही एडमिनिस्ट्रेशन है. अगर पॉलिटी पे ही ध्यान नहीं दोगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो यूपीएससी पॉलिटी को और इकोनॉमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है. राइट नाउ इन आवर कंट्री द स्टूडेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स who have strong hold in polity and economics, right? They are marching ahead, right? और इस टाइम पर ना क्या होता है, इस टाइम पे क्या जरूरत है? अगर आप इको, पॉलिटी, इन चीजों को अच्छे से समझो ना, आगे जाकर आपके हिसाब से डिपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे. Right? When you are going to clear this exam, then when you are going to go on the field, you will not be asked in which department you want to go. They will place you. ठीक है? वो आपको प्लेस करेंगे डिपार्टमेंट्स पे. तो आपको नहीं पता आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा. इसीलिए अगर आप ये बेसिक स्तंभ जो है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो दो बेसिक पिलर्स हैं, ये आपके अगर मुट्ठी में है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप आराम से हैंडल कर लोगे. इन एनी डिपार्टमेंट इफ यू आर प्लेस्ड, इफ दीज टू पिलर्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, they are, you can say strong, right? They are strong, then you will be in a position to handle anything, any challenge on field पे कोई challenge आए आप handle कर सकते हो. Yep. So first thing with which you have to start your preparation is previous year question paper, last 5 years, last 5 साल के previous year question paper. Then the second step is NCERT. prelims में maximum questions NCERT से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन 2017 अ क्वेश्चन ऑफ स्वतंत्र पार्टी के 2017 में स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. दैट क्वेश्चन इज नॉट इन एनी अदर डायरेक्ट स्टैंडर्ड मटेरियल. जो भी आपके डायरेक्ट स्टैंडर्ड मटेरियल से एम लक्ष्मीकांत ये और वो, उसमें नहीं है वो टॉपिक. दैट टॉपिक इज इन NCERT क्लास 12. वो टॉपिक क्लास 12 की NCERT में है. क्लियर एवरीवन? The next step is NCERT. Now self study if you are not doing, NCERT की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो और सिर्फ कोर्सेज पे, क्लासेस पे, वीडियोस पे डिपेंडेंट हो, देन भूल जाओ कि प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे. थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी ऑफ NCERT फर्स्ट, देन इफ यू आर getting stuck in a particular topic, you can take help from online videos, right? Then 110%, 110 क्या 200% you will be in a position to solve any question coming from NCERT in prelims. आप NCERT खुद पढ़ो. किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में डाउट आता है,
आप किसी वीडियो पे डिपेंडेंट हो सकते हो उस टॉपिक के लिए, पूरे चैप्टर के लिए भी नहीं, उस टॉपिक के लिए। पूरे चैप्टर के लिए भी होना है ठीक है, बट पूरी किताब के लिए डिपेंडेंट मत होना किसी भी वीडियो के ऊपर। फर्स्ट की इज टू क्लियर प्रीलिम्स सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं है और किसी ने आपको घोल मिलाकर पिला दिया और आप वही पढ़ के चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। NCERT is compulsory, you have to study NCERT, 11th 12th की NCERT, 9th की नहीं, 11th 12th NCERT is the favorite NCERT of UPSC. Clear everyone? इतना समझ आ गया। तो अगर आपने 11th 12th की पॉल साइंस NCERTs, 4 NCERTs हैं टोटल, देयर आर 4 NCERTs। 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ओके, एंड देन 12th क्लास NCERT पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 4 NCERT पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? इजी है, विद इन 2 वीक्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट देम। 4 वीक्स, 2 वीक्स में आप 4 NCERT 2 बार रिवाइज कर सकते हो, 2 बार, राइट। बट द कंडीशन इज दैट यू आर डेडिकेटेड इन योर प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट्स बोलेंगे ना अरे 2 वीक्स में कैसे होगा, मतलब वो स्टूडेंट्स, उनको पता है उनका सिस्टम बिल्कुल सीरियस नहीं है, मेच्योर नहीं है, या फिर डिसिप्लिन तो जीरो है, वही स्टूडेंट बोलेंगे मैम कैसे होगा। बट जो कम से कम दिन में 10 घंटे दे पा रहे हैं, या कम से कम 10 नहीं तो 6 घंटे दे पा रहे हैं, वो आराम से इन टॉपिक्स को, इन NCERTs को 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, ठीक। सो फर्स्ट NCERT विच यू हैव टू स्टार्ट विद इज दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको शुरू करना सबसे पहले, कवर टू कवर इस पर्टिकुलर NCERT को आपको खत्म करने में आराम से, आप अगर सीरियसली डेडिकेटेडली बैठते हो ना, 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, या 3 दिन में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम 3 days यू विल टेक टू कंप्लीट दिस NCERT। आपने अगर ये NCERT कंप्लीट कर ली, इफ यू कंप्लीट दिस NCERT, देन 40% ऑफ M लक्ष्मीकांत विल सीम वेरी इजी टू यू। 40% M लक्ष्मीकांत आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। 40% M लक्ष्मीकांत विल बी लाइक रिवाइजिंग इट, राइट। आपको अलग से कवर टू कवर M लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा आप रिवीजन कर रहे हो जब M लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे ना, शुरू के 11 चैप्टर्स जब आप पढ़ोगे M लक्ष्मीकांत के, वो बेस आपका यहीं से बनेगा। योर बेस विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर ओनली, ओके, क्लियर। So these 2 books you have to prepare, then these 2 class 12th NCERTs you have to prepare. Now after NCERT के बाद थर्ड स्टेप आपका आता है M लक्ष्मीकांत, ठीक है। Now for example you are studying fundamental rights in Indian Constitution at work. Fundamental rights chapter is in this book also and it is in M लक्ष्मीकांत also. ये चैप्टर आपका M लक्ष्मीकांत में भी है, राइट? Am I right or wrong? सबको पता है ये बात, सबके पास लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन और 5th एडिशन भी है, चलेगा, राइट, क्लियर। सो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इज इन M लक्ष्मीकांत ऑल्सो एंड इट इज इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ऑल्सो। सो वेन यू स्टडी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इन दिस बुक, राइट, साइमल्टेनियसली रेफर टू M लक्ष्मीकांत। जो जो चैप्टर्स क्लैश कर रहे हैं ना M लक्ष्मीकांत और NCERT के, द चैप्टर्स विच आर क्लैशिंग इन M लक्ष्मीकांत एंड NCERT, right, you have to take them together, simultaneous स्टडी करनी है आपको। इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी M लक्ष्मीकांत 60-70% तैयार होती चली जाएगी NCERTs के साथ, बाकी करंट अफेयर्स बचेगा, राइट, ओके, क्लियर एवरीवन। सो इफ यू साइमल्टेनियसली स्टडी M लक्ष्मीकांत एंड NCERTs, द चैप्टर्स विच आर सेम, जो चैप्टर्स सेम है साथ लेकर चलोगे, you will not even realize, but at the end of 1.5 months, 1.5 महीने के एंड में आपका 80% पॉलिटी तैयार हो चुका होगा, राइट। 80% ऑफ योर पॉलिटी विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ 1.5 months एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, आपका टाइम बचेगा। एंड आफ्टर स्टडिंग ईच एंड एवरी NCERT, डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व बैक क्वेश्चंस। आई विल शो यू द बैक क्वेश्चंस आल्सो व्हिच यू नीड टू सॉल्व, ओके। ये सबको दिख रहा है, दिस एक्सरसाइज पार्ट, एवरीबॉडी कैन सी दिस। ये चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दिख रही है सबको, everybody can see this, right? So these exercises contains MCQ based questions also and mains based questions also. These are the MCQ based questions, okay, and these are the mains based question. यहाँ तक तो MCQ based question है और यहाँ 4 question जो दे रखे हैं ये mains based हैं, ठीक है। So these are the back questions in NCERT, these are the MCQ related questions and these are the mains related questions. And these are direct questions, do not be scared of them.
यू कैन सेल्फ इवेल्युएट देम, आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया सबको, दिस मच इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम शुड वी मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए एनसीईआरटी में से? येस एंड नो, दोनों इसके आंसर है, येस एंड नो, राइट। अगर आपको लगता है, राइट, हो, सो यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग द बैक क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक नोट्स। नाउ नोट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन ईदर मार्क इन द बुक इटसेल्फ, या तो आप बुक्स में इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, इमेज में जैसे आपको दिख रहा है इस तरीके से किताब में हाईलाइट कर सकते हो। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हाईलाइटिंग इन द बुक इटसेल्फ? द प्रॉब्लम इज when when the revisionary time comes, अब हाईलाइटिंग के साथ दिक्कत क्या है, जब रिवीजन का समय आता है, राइट, तो क्या होता है, पूरी किताब जब आप खोलोगे, सब कुछ आप रिवाइज करने बैठोगे, तो हाईलाइटेड वर्ड्स के अलावा भी आपको मन करेगा ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, इसमें भी कुछ होगा, कहीं कुछ छूट ना गया हो, फिर आप ये बॉक्सेस पढ़ने लग जाओगे, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होगा। ओके, बट वहीं अगर आपके पास इस तरीके से फ्लो चार्ट फॉर्मेट में नोट्स हैं, इफ यू हैव नोट्स इन दिस फ्लो चार्ट फॉर्मेट, इट विल बिकम वेरी इजी। आप 1 घंटे के अंदर एक किताब रिवाइज कर लोगे, इन 1 hour you will be in a position to revise the entire book if you have notes. And you can see these are the notes, जुडिशरी चैप्टर के ऊपर नोट्स हैं, right? This note has been prepared from Indian Constitution at Work, class 11th NCERT. आप देख रहे होगे इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट, इन 2 pages, these notes have been prepared in 2 pages, 2 पेज में एक चैप्टर का नोट बन गया, वो भी फ्लो चार्ट में, within 2 pages the note of 1 chapter was made, that too in flowchart format. तो अगर आप इस तरीके से flowchart format में नोट्स बना लेते हो, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, आपका 90% टाइम सेव हो जाएगा, राइट, और आप पैनिक भी नहीं होगे, देयर विल बी नो नीड टू पैनिक। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है? So you can also install NCERT book app from Play Store, wherein the NCERTs are also given, the summaries of NCERT are also given, back questions are also solved here. If you want to evaluate your answers, NCERT के exercise के आंसर evaluate करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। So when it comes to note making from NCERT, what you have to do is you have to make notes in flowchart format. आपको flowchart format में notes बनाने हैं, so that within 1 hour 1 chapter can be revised. ठीक है, 1 hour में आपका एक चैप्टर, एक बुक कम से कम रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्लियर। नाउ नोट मेकिंग फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। अब बात आती है एम लक्ष्मीकांत की। व्हेन इट कम्स टू एम लक्ष्मीकांत, नोट मेकिंग, यू कैन से सीरियस नोट मेकिंग, जो बिल्कुल एकदम एक्सटेंडेड नोट मेकिंग होती है, वो इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज अ वेरी बल्की बुक। तो व्हेन इट कम्स टू एम लक्ष्मीकांत, इट इज अ बल्की बुक, पहले ही बल्की है, नोट्स बनाने लगोगे और ज्यादा बल्की हो जाएगा। एंड एवरीथिंग इज क्लियरली गिवन इन दिस बुक, अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक श्योर दैट एनी टॉपिक इन एम लक्ष्मीकांत, इफ इट इज इन करंट अफेयर्स, देन यू कैन नोट इट डाउन। कोई भी टॉपिक है जो एम लक्ष्मीकांत बुक में है, जो करंट अफेयर्स में भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल पिटीशंस, क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, जो आपके एम लक्ष्मीकांत में टॉपिक दिए हुए हैं, वो करंट अफेयर्स में भी न्यूज में हैं, तो आप उसका नोट बना सकते हो। ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच आर इन द लास्ट 1 year's करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लास्ट 1 साल में करंट अफेयर्स में हैं, उनका नोट बनाओ। Excessive study of any other article is not mandatory. UPSC only asks those articles which are in current affairs. UPSC extensively PhD करने को नहीं कहता आपको, right? It just is making questions from those articles which are in the current affairs. इधर उधर से कहीं से नहीं है। तो एक्सेसिव क्लॉज वाइज पढ़ना, एक सब क्लॉज वाइज पढ़ना, ये तो यूपीएससी ने कहा ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो यू कैन मेक, यू प्रिपेयर एन A4 साइज शीट ऑफ पेपर, एक A4 साइज शीट ऑफ पेपर रखो अपने पास, एंड whenever you read the newspapers, you come across any important article, you can just write it down and write
इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस आर्टिकल हैज कम इनटू द न्यूज। पर्टिकुलर कोई एक आर्टिकल न्यूज में है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूज में है आप वो लिख लो, राइट। क्लियर एवरीवन। आर्टिकल 360 आ रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल पूछा गया है, आप वो पूछ सकते हो, राइट। क्लियर एवरीवन, क्लियर हो गया। आर्टिकल 356 और 365 है न्यूज में, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। इस तरीके का अपना नोट बना के रखो एंड रिवाइज इट डेली, ओके। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग व्हाट यू आर राइटिंग, then not even in your dreams will you be able to retain the facts। जो लिख रहे हो वो रिवाइज नहीं करते हो अगर, तो सपने में भी कभी कुछ याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। प्रीलिम्स तो बहुत दूर की बात है, बट जो लिख रहे हो उसको रोज रिवाइज कर रहे हो तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, एक एल शेप फोल्डर लेना है। आई जस्ट शो यू द फोल्डर ऑल्सो, सकते हो। So make sure that you prepare your notes in A4 size sheet of papers like this। इस तरीके से आप नोट प्रिपेयर करो and then make sure that you revise। ये make sure करना कि आप रिवाइज भी टाइमली मैनर में करते जा रहे हो। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर हो गया। Now reading NCERTs is very important because I'll just show you a book also, a topic also। Everybody can see this clipping, सब ये clipping देख पा रहे हैं? All right, this is Bangladesh War 1971। बांग्लादेश वॉर 1971 जो हुआ था उसके ऊपर मेंस में काफी क्वेश्चंस आते हैं इन जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। सो इफ यू हैव स्टडीड द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटीज, अगर आप भूल भी जाते हो कोई अपडेट मेंस में, आप अपना इंट्रोडक्शन तो बना ही लोगे, राइट। इफ यू हैव स्टडीड द बेसिक नॉलेज अबाउट द बांग्लादेश वॉर और बेसिक नॉलेज व्हाट इज स्वतंत्र पार्टी क्वेश्चन केम इन 2017 इन प्रीलिम्स, और बच्चों ने वो गलत किया। एम लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया था वो क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी से लिया गया था डायरेक्ट एज इट इज वर्ड बाय वर्ड कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी, right? So that is why I ask you all to study NCERTs। Even in geography in 2016 question on Banjaras came, right? Geography में भी, geography से भी 2016 में बंजारास के ऊपर क्वेश्चन आया था and it was taken from 9th class NCERT। 9th NCERT से वो क्वेश्चन लिया गया था and most of the students they got confused and they left the question। ये टॉपिक बंजारा का ना जीसी लियोंग में था, ना माजिद हुसैन में, ना करंट अफेयर्स में, ये एनसीईआरटी से था। दैट इज वाई रीडिंग एनसीईआरटीज इज मैंडेटरी। अगर प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालनी है तो एनसीईआरटीज तो जरूरी है, एनसीईआरटीज प्लस करंट अफेयर, ये दो चीजें अगर आपने पढ़ ली, स्टैटिक बुक्स इतनी नहीं भी पढ़ी है तो भी निकाल लोगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। यू हैव टू एनालाइज द बुक्स वेरी केयरफुली। if you are reading about the Bangladesh war or Swatantra Party in NCERT, then analyze it very carefully। each and every word matters, क्योंकि अगर आप एक भी वर्ड, एक भी इवेंट, एक भी पर्सनालिटी अगर मिस कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज जो है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज आप इनसाइट्स की वेबसाइट पे सॉल्व कर सकते हो। फ्री एमसीक्यूज आर गिवन ऑन इनसाइट्स वेबसाइट, ओके। क्लियर? First thing you have to do is go through the previous year question paper last 5 years to understand the trend। Questions are coming from current affairs or NCERT। Second step is understanding the syllabus। There are many students who ask, ma'am, what current affairs should we study? These are those students who do not know a thing about the syllabus। यूपीएससी की तैयारी में आ गए हैं बट जाना ही नहीं है ये एग्जाम है क्या, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम करंट अफेयर्स में क्या करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, सिलेबस नहीं पता होगा, जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या है, जीएस पेपर 3 में, 4 में क्या है, तो कैसे पढ़ोगे। नाउ फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो, इनसाइट की, बायजूस की, क्लियर आईएस की, विद सोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर गिवन, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज एनसीईआरटीज। थर्ड स्टेप आपका आता है एनसीईआरटीज का। एनसीईआरटीज आपको पॉल साइंस में पढ़नी है 11th 12th की। 4 एनसीईआरटीज है टोटल जो आपको पढ़नी है। 4 एनसीईआरटीज देयर आर 11th 12th, you have to study them। You can make notes or you can skip making notes। I will recommend make notes, right? मैं आपको recommend करूंगी इस तरीके के फ्लो चार्ट फॉर्मेट में नोट्स बनाओ, like this in flow chart format, make notes because it will streamline your revision। आपका रिविजन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। रिविजन के टाइम पे पूरी किताब रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ अपने फ्लो चार्ट्स को रिवाइज करो और हो गया काम. Just revise your flow charts and within 1 hour your complete book will be revised. Okay? And when you study NCERT, solve the back questions as well. इससे क्या होगा, आपकी हाथों को आदत मिलेगी लिखने की, आपके माइंड को आदत होगी जो पढ़ा उसको लर्न करने की, रिवाइज करने की. ठीक है? And with NCERTs, study M. Lakshmikant. Whatever chapters are clashing, study them together. मान लो सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो NCERT में, सुप्रीम कोर्ट M. लक्ष्मीकांत में है, दोनों को साथ में पढ़ो. ठीक है? क्लियर? और डीडी बासु, एमडी बासु, ये सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है until and unless you have law optional और your public administration as optional. अगर आपके पास लॉ ऑप्शनल है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉल साइंस ऑप्शनल है तो थोड़ा बहुत डीडी बासु पढ़ना पड़ेगा. इन तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शनल नहीं है तो डीडी बासु पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है? सिर्फ एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी हैं. ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एनालाइज करने हैं आपको. ठीक है? सिर्फ प्रीलिम्स तक मत अटकना क्योंकि मेंस भी क्लियर करना है. यू डू नॉट हैव टू स्टिक टुवर्ड्स प्रीलिम्स, यू हैव टू आल्सो क्लियर. नाउ आई हैव स्ट्रीमलाइंड योर प्रिपरेशन. ओके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, go through the syllabus NCERT plus M. Lakshmikant, and then when you complete one chapter in M. Lakshmikant na or 2 chapters, try to solve previous year question papers of mains also. For example, if any chapter like fundamental rights you have studied, try to identify questions on fundamental rights in prelims and mains question paper, previous year question paper, and try to solve them. With this, within 3 months, entire polity will be prepared and you will be relieved at the end of the day. Right? जब रिवाइज करने बैठोगे इतनी शांति मिलेगी आपको, 3 महीने के अंदर पूरा पॉलिटी A से Z तक पूरा कवर. राइट? और इससे ज्यादा खुशी नहीं होती है कभी भी जब आपका टाइमली स्ट्रीमलाइन तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. द day, the moment when your entire syllabus of polity gets over in a streamlined manner, that is the happiest day of your life. Okay? Clear? इतना क्लियर हो गया सबको? This much is clear. These 3 things if you do, plus current affairs daily, the Hindu newspaper reading. अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, डेली हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हो, एंड नोट मेकिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स इज मस्ट. एट द एंड ऑफ द डे बिफोर यू गो टू स्लीप, सॉल्व 5 MCQs, करंट अफेयर्स MCQs ऑन इनसाइट्स वेबसाइट फॉर फ्री. दे गिव, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो लोग. सोने से पहले वो 5 MCQs सॉल्व करके सोना अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए. राइट? इफ यू कंप्लीट दिस मच, योर पॉलिटी विल बी प्रिपेयर्ड. अगर आप इतना कर लेते हो, आपका पॉलिटी प्रिपेयर्ड समझो. क्लियर? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नाउ देयर आर 1000 बुक्स ऑन पॉलिटी इन द मार्केट. देयर आर मोर देन 1000 पीपल हु विल गिव यू 1000 प्लस एडवाइजेस. इट्स ऑन यू टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन. यू हैव ओनली 1 year टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. आप ये सोच के तो नहीं बैठे हो ना कि आप 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में निकाल लोगे. नहीं ना, हर कोई ये सोचता है हम एक ही अटेम्प्ट में निकालेंगे. एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. राइट? क्लियर? सब यही सोचते हैं. एवरीबडी थिंक्स लाइक दिस. एवरीबडी थिंक्स दैट वी हैव 1 year ओनली, दिस इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, वी हैव टू क्लियर इट. सो डू नॉट फॉल इनटू द बेसलेस एडवाइस ऑफ अदर पीपल. किसी की भी 10,000 एडवाइस में मत गिरना. दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरे दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरे डीडी बासु यू हैव टू स्टडी, अरे दिस न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, दिस website is important. Do not fall into this trap. You have a very limited time. Save it. जितना हो सकता है सेव करो. And not only you do not have to prepare polity only. There are other subjects also. Okay, geography, then history, economics, social issues, this, that, right? तो आपको पता है आपके पास पॉलिटी के अलावा और सब्जेक्ट्स भी है. सिर्फ पॉलिटी में 4 बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे, राइट? एम लक्ष्मीकांत के अलावा ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ये वेबसाइट, वो क्लास, तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है? क्लियर? तो आपको जो मैंने बताया है आप उसको फॉलो करोगे, इजी है आपके लिए. I have tried to streamline your preparation according to UPSC's demand. मैंने आपको UPSC की करंट डिमांड के बेस पे ये 4 चीजें बताई हैं. फॉलो कर लो, बहुत अच्छा. और फिर भी आपको 5 और एडवाइस लेनी है और अपना टाइम इधर उधर स्पेंड करना है, आप वो भी कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? This much is clear? All right, इतना क्लियर हो गया. So this is the ideal way, the ideal manner of preparing Indian polity.
ये है एक आइडियल मैनर इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करने का। ठीक है, क्लियर हो गया।